جی السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر ایاز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست جناب ریحان باقر صاحب. سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے آپ سے بنیادی سوال. آپ اپنی سوشل میڈیا وال پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس پہ گلف کو بار بار آپ انسسٹ کرتے ہیں لوگوں کو جی کہ لوگ یہاں پر آئیں. اچھا، ٹو بی آنیسٹ میں بھی چونکہ گلف کے اندر رہا ہوں اور تھوڑا سا میرا بھی مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی میری بھی جان پہچان ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ بنیادی طور پر خالی ہے، حقیقت سے آ رہی ہے وہ چیز، مجھے یہ لگتی ہے. کیونکہ میرے جاننے والے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو بیچارے ابھی بھی بے روزگاری کی حالت کے اندر وہ پھر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں گلف کی طرف آئیں، گلف کی طرف آئیں. تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے ہمیں گلف کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ گلف میں پوٹینشیل اتنا کیوں ہے، ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ آپ گلف میں آئیں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد پیٹرول کی پرائسز اتنی اوپر گئیں کہ جو گلف ممالک ہیں وہ اگر یہاں تھے تو انہوں نے $1 ٹریلین ارن کیے. نمبر 1 صحیح ہے. تو نمبر 2 یہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کا بھی ویژن 2030 چل رہا ہے، صحیح. عمان کا بھی چل رہا ہے، دبئی جو ہے وہ کبھی بھی رکا نہیں ہے. تو اسی طرح بحرین اور قطر بھی اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں، رائٹ. جس طرح قطر نے جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کیا. اب آ جائیں کہ ہماری کتنی کمیونٹی ہے گلف میں. اس وقت 50 لاکھ پاکستانی ہیں جو گلف میں کام کر رہے ہیں. آپ کا سوال کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بے روزگاری کی آپ نے. ہاں بالکل بالکل، میرا یہی کہنا ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ کسی کو، اپنے کزن کو، رشتہ دار کو کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ویزا پکڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں. آنے سے پہلے وہ تیاری کر کے نہیں آتے. اب تیاری کیا ہے؟ تیاری نہیں کر کے آتے. موسٹ امپورٹنٹ کیا تیاری کرنی چاہیے یار؟ وہ کپڑے تو خرید لیتے ہیں، سارا کچھ تو اپنا پڑھا کے آ جاتے ہیں، ڈگریاں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. آپ کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ نہیں، تیاری کو ہم اس طرح دیکھیں گے. نمبر 1 یہ ہے کہ ویزا انہوں نے لیا، یہ بہت بعد کی تیاری ہے. اچھا. اس سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے اس کے ریلیونٹ آپ کے پاس کتنا نالج ہے، آپ کا ایکسپیرینس، اور وہاں کوئی سرٹیفکیشن چاہیے. بس میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ہاں بالکل. مثال کے طور پر جو لوگ یہاں BCom یا MCom کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آ کے یہاں پہ جاب بہت کم ملتی ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 14 یا 16 جماعتیں پڑھی ہیں، ہمیں جاب کیوں نہیں مل رہی. صحیح ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈگری چاہیے، سرٹیفکیشن چاہیے، وہ سرٹیفکیشن ان کے پاس نہیں ہے. اچھا. اگر ان کے ریلیونٹ ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہے، جیسے کوئی بندہ ماسٹر ڈگری کر کے ٹیچنگ میں آتا ہے اور وہ UAE جاتا ہے تو اس نے BEd نہیں کر رکھا. اگر اس نے BEd اوپن یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے تو UAE والے نہیں مانتے، ورچوئل یونیورسٹی کو UAE والے نہیں مانتے، سعودی عربیہ والے مانتے ہیں. تو اگر کسی نے ٹیکنیکلی آنا ہے تو ٹیکنیکلی اس کو ساؤنڈ ہونا چاہیے. ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال یونیورسٹی یہ پوری دنیا کے اندر ریکگنائزڈ ہے. کیا گلف ممالک میں؟ گلف ممالک نہیں، صرف دبئی والے ان دونوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس کی بیس پہ وہ آپ کو اسپیشلی ٹیچنگ میں وہ جاب نہیں دیتے، رائٹ. تو مطلب یہ بات ساری بات کا کہ آپ نے جس ایریے میں آنا ہے، آپ کا وہ ریلیونٹ جو ایریا ہے اس کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو. مجھے ایک بندے نے ڈرائیونگ میں آنا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، مجھے جہاز بھی دے، میں چلا لیتا ہوں. صحیح ہے. اس بات کو انٹرویو میں کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. بالکل صحیح. وہ کریں گے کہ آپ کے پاس LTV لائسنس ہے یا HTV ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے ڈرائیور کے طور پہ آنا ہے. ہیوی ڈرائیور کا بہت اچھا کریئر ہے گلف کے اندر، لاجسٹک میں بہت کام ہے، لیکن وہ بندہ لائسنس بنا کے لاتا ہے اور اس کا لائسنس صرف 15 دن پرانا ہے. ایکسپیرینس وہ لکھ رہا ہے 4 سال کا. ایکسپیرینس اس دن کاؤنٹ ہونا ہے جس دن آپ کا لائسنس بنا ہے. تو آپ کا لائسنس بنے کو 15 دن ہوئے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس 15 دن کاؤنٹ ہوگا. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں، ایسے میجر کی پوائنٹس ہیں جو کہ ہمارا بیٹھا ہوا نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے اندر اکنامک سچویشن، پاکستان کی معاشرتی حالات کس طرح کے ہیں، اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہماری آڈینس جو ہے وہ تو بیچارے بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے کون سی کوئی ایپ کے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن ہے جو پن پوائنٹ گائیڈ لائن ہو کہ یہ 4-5-6 پوائنٹس ہیں، ان کو وہ فالو اپ کریں اور فالو کر کے تو وہ جاب حاصل کرنے کے لیے کیپیبل ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا میکانزم جو کہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی ایسے ریکگنائزڈ ادارے ہوں کہ جہاں پر وہ جائیں اور جہاں پر ان کو پن پوائنٹ انفارمیشن بھی مل جائے اور جہاں پر وہ انٹرویوز بھی دے سکیں،
क्योंकि एजेंट्स वाला जो सिलसिला है, अक्सर शिकायतें आती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि वो मेरे पैसे खा गया, ये हो गया, मेरे वो हो गया। तो इसका क्या 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 सोल्यूशन है? आपने ना असल में दो क्वेश्चन किए हैं। एक ये है कि यहाँ पर जॉब आने से पहले वो जॉब के लिए उसके पास क्या एरियाज हों जिन पे वो काम करे अच्छा। और यहाँ आके वो जॉब कर सके। दूसरा आपने किया कि जो गवर्नमेंट जो का कोई इदारा क्या ऐसा है, बिल्कुल है। तो पहले हम गवर्नमेंट के इदारे पे काम की बात करते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट का इदारा है हमारा जो BEOE.org.pk। हाँ BEOB नो BEOE.org.pk .org.pk। इसका लिंक जो है वो हम अपनी वीडियो के नीचे बिल्कुल दे देंगे। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें सिर्फ सऊदी अरबिया और गल्फ नहीं है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की Right. पूरी दुनिया में जो जॉब्स आती हैं ठीक उसमें आपने सर्च बार में जाना है। ठीक है। आपने उसमें अगर फर्ज करें आपको लीबिया में जॉब्स है, ऊपर लीबिया लिखेंगे, लीबिया की जितनी भी जॉब्स होंगी वो सारी की सारी उस पर आ जाएंगी। ठीक है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि इसी में आपको सऊदी अरबिया की चाहिए तो इसके सामने जॉब के सामने उसकी डिटेल होगी और एक ओवरसीज प्रमोटर का नंबर होगा जिसके लिए आप एजेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। ओवरसीज प्रमोटर का अगर जो स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। ग्रीन है, ठीक तो है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के कागजों में बंदा जेन्युइन है। आप आंखें बंद करके उससे वीज़ा ले लें, आपको वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा तो उसकी जो एजेंसी बंद होगी और उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होगा। ये अच्छा। प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि आप किसी को वाकफियत की बुनियाद पर पैसे देते हैं, आप उससे रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ नहीं लेते। आप किसी को भी पैसे पे करें उसका प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल उसके सही। बाद उसका प्रॉपर एक ओवरसीज प्रमोटर नंबर है वो चाहिए, ठीक है। स्टेटस उसका ऑनलाइन आप चेक करें, ठीक ये है। देखें कि वो बंदा कितनी देर से वहाँ बैठा हुआ है, राइट। जी। बजाय इसके कि किसी कज़न और ताए चाचे मामे के थ्रू आप पैसे दें, आप प्रॉपर बंदे को पैसे दें। एक ये वे हो गया। सही। प्राइवेटली PPA काम करती है, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, अच्छा। ये भी गवर्नमेंट की तरह लेवल पे काम करती है। ठीक है। तीसरी है पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा। ये पाकिस्तान 3 overseas- इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर आपका देसी तरीका है कि किसी से आप आज़ाद वीज़ा वैसे कोई नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानियों ने फ्रीलांस वीज़े हाँ, का ये नाम आज़ाद बिल्कुल। वीज़ा रखा आज़ाद हुआ है। वीज़ा, सही है। तो अगर गवर्नमेंट के थ्रू आप आते हैं तो आपकी सैलरी कम होती है। सही है। फ़ायदा ये है कि वहाँ 2 नंबरी नहीं होती, आपको आके जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, ठीक है। और आप 2-3-4 लाख रुपए में एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ये एक्सपीरियंस आपने ले लिया, 2 साल के बाद फिर आपके पास और अपॉर्चुनिटी आप फिर आगे देख सकते हैं। ठीक है। तो जो मेरा पहला सवाल था कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारे जवान जो हैं वो तैयारी कर सकते हैं और फिर वो इन अदारों के साथ रुजू करें और अपनी जॉब जो है वो हासिल उसमें करें। तैयारी 2 तरह की है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन है ठीक कि आपकी सारी डिग्रीज जो हैं वो पहले नंबर पर आपकी बोर्ड वाली डिग्रीज बोर्ड से, ठीक है। नंबर 2 IBCC, ठीक है। नंबर 3 HEC हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। और चौथे नंबर पे मुफा। इन चारों से आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए। हम्म। पासपोर्ट आपका 5 की बजाय अगर 10 इयर्स का हो तो बेटर है, ताकि गल्फ से आपको आगे भी कनाडा अमेरिका मूव करना हो तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये होगी डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल सही है। अब उसके बाद आ गई उसकी एजुकेशन या स्किल। सही है। अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं, स्किल भी नहीं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मजदूर हैं। तो बिल्कुल सही। मजदूरी में ये होता है कि बाज़ औक़ात तो आपके पास पूरा महीना सर को जाने की फुर्सत नहीं होती, और बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट बंद होता है अगर, तो 1-1 डेढ़ महीना फारिग रहते हैं। अच्छा। तो आपके पास जो स्किल है हम्म। वो आपकी प्रॉपरली पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्किल नहीं है ठीक तो है। जिन चीज़ों की यहाँ पर गल्फ में ज़रूरत है वो आप स्किल लर्न कर लें। मतलब एक बंदे को सिंपल ड्राइविंग आती है, अच्छा। उसके पास ये फोर्क लिफ्टर है, बूमर है, उसके बाद इस तरह के 4-5 जो मशीनरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, ठीक। 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग है, हर बड़े सिटी में होती है। ठीक। आप उनकी ट्रेनिंग लें, उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक। आप एक रीज़नेबल रोज़गार पे लग जाते हैं। सही है। तो यानी कि शुरू से अगर आपको ये चीज़ आती है तब भी, अगर ये नहीं आती तो आप इसको सीख लें। सही। किसी को कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, उसके बाद कोई आपको ऑटो कैड में काम आता है, आपको जो भी स्किल आती है वो स्किल आपको प्रॉपर आनी चाहिए। उसका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जी। और उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो। ठीक है। और अब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने प्रोफेशनल टेस्ट कर दी है, तो अच्छा। आपको वो बाद शोबों में वो टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, उसकी भी डिटेल्स आ रही हैं।
ठीक है, राइट। वो टेस्ट जो है वो सऊदी अरब के अंदर आके देना पड़ेगा या वो पाकिस्तान में आप टेस्ट देंगे, ठीक है, वो आपको रिकग्नाइज करेंगे, ट्रेड टेस्ट है, वो आप पास करेंगे तो आप आएंगे। सही वो है। हर आने वाले दिन के साथ हर प्रोफेशन में हो रहा है, तो इसलिए ठीक है। आपकी प्रॉपर गल्फ में आने से पहले तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें आखिरी बात ये है कि वो है सीवी की। लोग आके यहाँ आके रूम्स में बैठ जाते हैं, अब और किसी कज़न को कहेंगे मुझे जॉब लगवा दें, वो बिजी है, दोस्त बिजी है, वो हफ्ता 10 दिन बाद कहता है अच्छा आपकी सीवी दी हुई है। टाइम तो किसी के पास नहीं। इस तरह से नहीं है, आपके पास प्रॉपर आप सीवी इंटरनेशनल बनवा के लाए। आप नेट कैफे वाले से 100 रुपए की सीवी बनवाते हैं, वो सीवी यहाँ एंटरटेन ही नहीं होती। आप उसमें एड्रेस और व्हाट्सएप पाकिस्तान का लिखते हैं, वो चेक ही नहीं होता किसी जगह। आपने उसको अपडेट करना है, यहाँ आके यहाँ का आपने एड्रेस देना है प्रॉपर। आपकी उसमें अगर पिक्चर लगानी है ड्रेसिंग और इंटरनेशनल लेवल की जो आजकल सीवी चलती है, जो सिस्टम में आती है, वो आपकी बनी होनी चाहिए। अगर आपने इंटरव्यू कभी नहीं दिया तो आप 2-4 इंटरव्यू यूट्यूब से देख के अपने शोबे के उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। तो इसकी प्रॉपर मतलब हम भी इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, और भी इदारे हैं कि जो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए जॉब हासिल करना कदरे आसान हो जाता है। तो ये एरिया अगर आपके बेहतर हों तो फिर आपको गल्फ में आके मसाइल बहुत कम पेश करते हैं। कौन सी ऐसी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं जो इस वक्त गल्फ के अंदर ये कहने के बंदा नहीं मिल रहा? हमारे यहाँ तो पाकिस्तानियों के अंदर तो ट्रेंड ये है ना कि वो एक कह लें कि एक भेड़ चाल वाला सीन बन जाता है कि पहले जो है वो अगर लोग जो है वो ई कॉमर्स की तरफ थे तो ई कॉमर्स की तरफ चलते जा रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरे जो हैं वो किसी ने बी कॉम किया तो वो सारे बी कॉम की तरफ जा रहे हैं, कोई आईटी वाले हैं तो आईटी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आप कोई मेंशन कर सकते हैं कि लोअर क्लास से लेके अपर क्लास, एग्जेक्टिव क्लास या ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर कौन सी ऐसी कोई स्किल्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो इस वक्त गल्फ ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा है? इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन का एरिया आता है। अच्छा, क्योंकि इस वक्त अगर हम कंट्री वाइज देखें तो सऊदी अरेबिया में कोई 25 के करीब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल तो कंस्ट्रक्शन के रेलिवेंट कोई 50-60 जितने भी एरियाज़ हैं, मतलब इसमें लॉजिस्टिक एक पूरा एरिया आ गया। सही है। उसके अंदर मजदूर से लेके जिन लोगों ने वो मशीनरी चलानी है वो सारे लोग आ गए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल का काम होगा, मैकेनिकल का होगा, उसके बाद उसके अंदर नेट चाहिए तो फिर वो आपके सारे लोग जो उसके रेलिवेंट है वो नेटवर्किंग के सारे लोग आएंगे। इस काम को चलाने के लिए अकाउंटिंग के रेलिवेंट अकाउंटेंट्स चाहिए, आईटी का पूरा शोबा चाहिए, तो उसके प्रोक्योरमेंट चाहिए। ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो हम इसको नीचे से लेके ऊपर तक ये सारी की सारी जॉब जो हैं वो आपकी डिमांडिंग है। ठीक है। ये सारी एक कहा ये जा सकता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक जो शोबा है उसके अंदर सैचुरेशन नहीं है, हर जगह पे स्पेस मौजूद है। स्पेस मौजूद होती है। समटाइम इस तरह होता है कि आप किसी सिटी में आए, मिसाल के तौर पे एक बंदा दमाम में आ गया, सही है। अब दमाम की पॉपुलेशन 1 मिलियन है, ठीक है। वो दमाम में आके 3 लोगों को मिलता है और पहले वाले लोग हमेशा उसे कहते हैं इतने तो की लैंड आ गया, इतने तो कुछ भी नहीं है। और कहने वाले 20 साल से मौजूद हैं, पीछे अपने प्लॉट भी बना रहे हैं, घर भी बना रहे हैं और आने वाले बंदे को डीमोटिवेट करते हैं। ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी गंदी आदत है, डीमोटिवेट करना। तो बाय डिफॉल्ट गंदी आदत है। इसलिए आप आके किसी बंदे से मिलने की बजाय आप पहले सारे सिस्टम को स्टडी करके आए। अगर आपको 2-4 दिन दुबई में जॉब नहीं मिल रही, रियाद बड़ा सिटी है, उसकी 6-7 मिलियन पॉपुलेशन है, जद्दा बड़ा सिटी है, मदीना में प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, आप वहाँ मूव करें। एक बंदे लोग आते हैं, अगर यूए की बात करें, दुबई आए हैं तो वो वहाँ से अबू धाबी नहीं जाते, वो कहते हैं जी हमने दुबई में जॉब लेनी है। अब दुबई का टोटल 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसके अंदर जितनी जॉब्स हैं, अगर उसमें 50 लाख लोग नए आ जाएंगे तो इतनी जॉब्स कहाँ होंगी? तो इसका मतलब है आप रासल खैमा फुजेरा आगे मूव करें। बिल्कुल, आप मस्कत आ गए हैं, आप उसके बाद सोहार की तरफ मूव कर रहे हैं, सलाला के अंदर नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बाद इसकी में चल रहे हैं, जो है ना वो किंग के नाम से जो नया सिटी बन रहा है उसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्पेसिफिकली जॉब्स के हवाले से क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं ममालकों के, ये मुल्क जो है इसके अंदर गल्फ के वो ममालक कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं या मोस्ट डिमांडेड कंट्री है? नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे ये इसका एरिया पॉपुलेशन है। सऊदी अरेबिया पहले, फिर यूएई है, अच्छा, तीसरे नंबर पर आपका ओमान है, अच्छा, और उसके बाद फिर कतर है, ठीक है, बहरीन है और कुवैत है। ये तरतीब है। अच्छा, इसी तरह जो है वो सही है। यानी आपका ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले टारगेट किया जाए वो सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया में तो हालात ही बहुत ज़्यादा वो
कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती है और इस तरह के मामलात हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं वहाँ पर जाने से। मैं सख्ती से आपकी क्या मुराद है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप नीचे जाएं अपना किसी स्टोर से, दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए, तो वहाँ पर शुरते जो हैं वो पकड़ के आपको उठा के अंदर कर देते हैं। मुझे 12 साल हो गए, ठीक है। मेरी आज तक चेकिंग नहीं हुई। अगर आप लीगली मौजूद हैं तो रात के मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट सिटीज़ का बता रहा हूँ। पाकिस्तानियों में तो ये मिथ बड़ी मशहूर है कि वहाँ पर शुरते ये कर देते हैं, वो कर देते कुछ हैं। भी नहीं करते। अच्छा। शुरते तो जो है वो यानी वो मुकम्मल आज़ाद मार्केट है। बिल्कुल आज़ाद है। ये कुछ छोटा मोटा कोई जो वाक़यात हैं वो इलीगल लोगों के साथ होते हैं। अच्छा, ठीक है, अदरवाइज़ तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप 100 साल भी नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, ठीक है। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। इंशाल्लाह फिर किसी मौजूद पर ज़रूर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।